नया चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेट क्या होता है? इट वॉज नोन टू अस फ्रॉम अर्लियर डेज दैट देयर आर सम पीसेज ऑफ मैग्नेटाइट और Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 which is an ore of Fe. It shows a peculiar property of attracting all Fe particles, iron particles towards it, cobalt particles and nickel particles towards it. This particular tendency or this particular property is indicated by these pieces of Fe3O4. We call them magnetite. Clear? These pieces were found in minor Asia. एशिया का एक पार्ट तिब्बत के ऊपर, मंगोलिया वगैरह एरिया, उसको बोलते हैं माइनर एशिया। इन दोज पार्ट्स पूरा पठारी एरिया है वो, ठीक है। थोड़ा सा यदि अपन ऊपर की चट्टानें निकाले तो उसके नीचे इसका और मिलता है, वहाँ आज भी मिलता है, रेडिश होता है और इसलिए उसको रेड लैंड भी बोलते हैं। आज मंगोलिया के आसपास का एरिया पूरा रेड है। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ओर। और इसकी क्या खासियत थी कि इट अट्रैक्ट्स दिस FeCO टूवर्ड्स इट। दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो वहाँ जहाँ मिलता था वो मैग्नीशिया कहलाता था, इसलिए इसको बोला गया मैग्नेट। वैसे मैग्नेट की लिटरल मीनिंग होती है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग अदर्स, जिसके पास ऐसा कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इससे दूसरे को अट्रैक्ट करे वो, वी कॉल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। एंड दिस हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड मैग्नेट। दिस इज नेचुरल मैग्नेट, इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। टू मेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वी यूज स्टील, a pure steel when placed along north south direction inside earth for long time it start to behave as a magnet. वो एक नेचुरल मेथड होती है मैग्नेट बनाने की। आफ्टरवर्ड्स व्हेन सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? वोल्टा और गैल्वेरी। देन ही वाज एबल टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ही टुक पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन and a coil is wound over it, copper coil, and when current is passed through it, this particular piece start to behave as a magnet. If we take steel, pure steel, then this magnetic property remains in it for a long time, and आप current flow करना बंद भी कर दें, then still it has property of attracting other ferromagnetic materials towards it. We call it magnet. Clear? They are quite strong. These magnets are quite strong. Their second property was that whenever we suspend it in air, it always aligns itself in the direction of north south. We call it directional property. That means this magnet has a directional property, it always remains in north south direction. ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज देखे आपने। नंबर वन, it attracts all ferromagnetic material towards it, and number two, it always remains in north south direction when we suspend it freely. And number three, very important, if we take two magnets then their similar poles repel. This property is only indicated by magnet. There is no other material which will show repulsion, ठीक, other than charged objects. ठीक है, तो sometimes question says that which property you will find as unique property of a magnet. It is not directional property. It is due to Earth. Directional property we are observing in Earth because of magnetism of Earth. Moon पे ले जा लो उसको, it will not remain in north south direction. So this property is not a unique property, it is only on earth. But attracting and repulsive property between similar pole is universal. आप मून पे भी जाओगे तो दो सिमिलर पोल से होंगे तो रिपेल करेंगे, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एक मार्क का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट? इट इज़ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर पोल्स। Clear? So third property is whenever two similar poles are kept near to each other, they will repel, and opposite poles they will attract. अब मैं बोलूँगा कि opposite poles attract कर रहे हैं, इस property को क्यों नहीं बोला आपने unique? Because it is not unique. Why? A magnet always attracts ferromagnetic material towards it, and opposite poles also attract. अब तुम कैसे बोल दोगे कि ये ferromagnetic property है या ये किसी दूसरे पोल के कारण हो रही है? But repulsive property is only a unique property. ध्यान रहेगा इसका। तो ये मैग्नेट जो बना था ये कैसे बना था? व्हेन करंट इज पास्ड, ठीक है। तो करंट, वी कैन से दैट वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसे किया अपन ने, ठीक है। और सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट 1820 में ऑरस्टेड ने किया था। ही डिड एन एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। विद द हेल्प ऑफ दैट ही वाज एबल टू शो दैट व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल a magnetic field generates around it. That means electrical energy can be converted into magnetic energies. After many years, Faraday was the second scientist
टू कन्वर्ट विच एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइस वर्सा। ठीक है, उसने क्या लॉजिक लिया, देयर इज सिमेट्री इन नेचर, इफ वी कैन कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू बी, वी शुड आल्सो कन्वर्ट बी इनटू ए, एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू गिव फैराडेज लॉस। ठीक है, अभी हमको पढ़ना है सबसे पहले ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या था एक्सपेरिमेंट, उसको 2 मिनट देख लें अपन। ये तो समझ में आ गया, इतना मैंने बताया। मैग्नेट के बारे में इसलिए बताया कि मैग्नेटिज्म का चैप्टर अलग है। ठीक है, और बहुत बुरा हुआ है कि वो डिलीट हो गया है। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो उसमें से बताना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया होता क्या है मैग्नेट। ठीक है, ओरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो देखें। A conducting wire AB is used. It is connected to a battery with the help of, एक मिनट, with the help of a rheostat, and a needle is placed adjacent to it. A key was also there. When key is open, this needle is always along north-south direction. यहाँ नॉर्थ था और यहाँ साउथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। needle है ये मैग्नेटिक needle। पानी देऊन दे, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैग्नेट नीडल है ये। ठीक है, जब भी आप इसमें जैसी की को क्लोज करोगे, वी ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इन दिस नीडल आइदर अवे और टूवर्ड्स। ठीक है, अभी मैंने अवे ले लिया इसको। मध्ये जाईन 2 मिनिटासाठी। This needle will move away or towards it. When you increase the value of current with the help of rheostat, rheostat से resistance कम करोगे तो current increase होगा। He observed that there is more deflection. That means value of deflection depends on value of current which is flowing through this wire. अभी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, when he shifted this needle away, he observed that deflection reduces. पहले जितना डिफ्लेक्शन से और दूर ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, पास लाओगे डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है करंट की, वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, व्हेन ही रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी जो डायरेक्शन ऑफ करंट लिया था उससे अपोजिट कर दिया, ही ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन वाज इन अपोजिट डायरेक्शन, इधर। ठीक है, तो ये पूरा चारों पॉइंट क्या शो करता था, दैट व्हेन एवर करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड इट, and value of that magnetic field depends on amount of current, distance of the point, distance of the needle and direction of current. But उसके आगे कितना किस तरीके से इफेक्ट पड़ता होगा ये वो नहीं बता पाया। He was only able to show that whenever current passes through a conductor, a magnetic field generates around it. We call it Oersted's experiment. ठीक है, ये कब किया था उसने, 1820, इन द ईयर ऑफ 1820, काफ़ी साल पुरानी बात है। ठीक है, और उसके बाद बायो सेवर्ट, ये 2 साइंटिस्ट थे। ठीक है, फ्रांस के, इसका टी प्रोनाउंस नहीं होता, और ये सेवर्ट 2 हैं। ठीक है, दे फाउंड द अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट एडजेसेंट टू इट। उसको अपन बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में हर साल आता है। ठीक है, कि राइट बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक, और उसके साथ चिपका हुआ रहता है हाउ विल फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या लिखा रहता है राइट हैंड पाम रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्सप्लेन ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन ओरस्टेड, ये ओरस्टेड है, बंद करना, उससे तो ही नहीं होगा, एसी चल रहा है, तो ऐसे साइड आके बैठ जाओ, पीछे चले जाओ, है ना वहाँ जगह, पूरी लाइन खाली है। एक्सप्लेन ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये छोटा सा डायग्राम बना लोगे इसके लिए, सिर्फ ये बनाना है डायग्राम। की को क्लोज करने के बाद ये नीडल बनाना है, नीडल NS पोजीशन में है, उसकी ये 1 पोजीशन है और ये फिर ये 2nd पोजीशन है। ठीक है, दोनों को शो करना है। ठीक है, ये मैग्नेट नीडल है, कर लो इसको।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये लिखा हुआ है, ये देख लो। लिखेंगे इन द ईयर ऑफ 1820, in the year of 1820, Oersted did an experiment. In the year 1820, Oersted did an experiment to show magnetic effect of current. Did an experiment to show magnetic effect of current. Magnetic effect of current. AB is a conductor. AB is a conductor which is connected to a battery, a rheostat and a key. Which is connected to a battery, rheostat and a key. Rheostat means variable resistance. Rheostat and a key. RHEOSTAT, rheostat and a key. A magnetic needle is placed adjacent to the conductor. A magnetic needle, ब्रैकेट में NS लिख देना क्योंकि उसको ज़्यादा इजीली आप NS से भी लिखते हो. A magnetic needle NS is placed adjacent to the conductor. A magnetic needle, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, NS is placed adjacent to the conductor. Adjacent to the conductor. Next time लिखेंगे when key is open, when key is open, when key is open, needle remains exactly north south direction. When key is open, open रहेगी मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, है ना. When key is open, needle
is exactly along north-south direction. Needle remains in north-south direction. Needle remains in north-south direction. North-south direction. नंबर अगली लाइन लिखेंगे, when we connect the key, when we connect the key, we observe slight deflection in needle. We observe slight deflection in the needle. We observe slight deflection in the needle. When we increase value of current, this deflection also increases. When we increase current, deflection also increases. Deflection also increases. ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे, when we reverse the direction of current, when we reverse the direction of current, when we reverse the direction of current, we observe that deflection also on other side of zero. Deflection also reverses. We observe that deflection also reverses. बस इतना बार लिखें, deflection also reverses. बहुत हिल रहा है. This experiment clearly shows that, conclusion है इसका ये, this experiment clearly shows that a current carrying conductor produces magnetic field. A current carrying conductor produces magnetic field. A current carrying conductor produces magnetic field. ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती होगी? ठीक, इसके लिए बायो-सेवर्ट गेव अ लॉ विच इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट्स लॉ. क्या है, पहले पूरा समझ लें अपन इसको. डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी समझ लें. ये एक्चुअली एक ऐसी मेथड है बायो-सेवर्ट्स लॉ जो बहुत कन्वेंशनल तो है. ये वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी शेप ऑफ द कंडक्टर. ठीक, सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर नहीं, रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, सर्कुलर कॉइल होगी, किसी भी टाइप की कॉइल हो, किसी टाइप का कंडक्टर, वी आर एबल टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग दिस बायो-सेवर्ट्स लॉ. और इसलिए सबसे ज़्यादा अडॉप्ट होती है. इन दिस पर्टिकुलर लॉ इट सेज दैट इफ देयर इज अ लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट थ्रू इट, कैरिंग करंट आई थ्रू इट, ठीक है, देन इफ वी डिवाइड इट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स वी कॉल देम करंट एलिमेंट्स. We divide them into infinite number of current elements. One of such element is AB of length dl, which is at a distance of y from this point P. Our object is to find out MFI, magnetic field intensity, at this point P, which is at a normal distance of r from O, but its distance from this AB section is y. This AB section is very small. dl is infinitesimally small. So if this angle is theta, angle made between this small element, current element, and this PB line joining that element to point P, if the angle is theta,
Then he told that value of magnetic field intensity dB mod is proportional to current flowing through that conductor. It is proportional to length of that part, current carrying conductor. It is proportional to sine theta, where theta is angle between that current element and the line joining point P to the current element. And finally proportional to 1 upon y square, where y is normal distance between that current element and point P. When we join all of them together, then we get this formula: dB mod is equal to mu 0 upon 4 pi I dl mod sin theta अपॉन y स्क्वायर. कुछ बुक्स में y की जगह r लिखा हुआ है, नहीं डिस्टेंस को r बता दिया. ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा. म्यू 0 क्या है? म्यू 0 हियर इज मैग्नेटिक परमिटिविटी. वो क्या थी वहाँ? परमिएबिलिटी आएगी, सॉरी. इलेक्ट्रिक क्या थी? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम. जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, क्या होता था? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. यहाँ पर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज डेफिनेट म्यू 0 अपॉन 4 पाई. इट्स वैल्यू इज 10 to the power minus 7. ठीक है, वैल्यू जो 10 to the power minus 7 है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ठीक, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा सा. ठीक, तब ये उन्हें अच्छे से समझेंगे. इट इज़ जस्ट लाइक एप्सिलॉन नॉट. जैसे अपन जानते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट पर, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिपेंड करती है म्यू 0 म्यू नॉट पर. इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ एयर. ठीक, और वैक्यूम. म्यू 0 अपॉन 4 पाई है डेफिनेट वैल्यू. जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी? 9 into 10 to the power 9. In the same way here mu 0 upon 4 pi is 10 to the power minus 7. And you will find out that 1 upon under root mu 0 into epsilon naught is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है, और इसलिए इसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे अपन. That means electromagnetic wave, the speed of electromagnetic wave not only depends on magnetic property but also on electrical property. दोनों पे. ठीक है, अब म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. तो ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी है यहाँ पर. फिर से रिपीट करें. इफ देयर इज ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वी वांट टू फाइंड आउट MFI एट ए पॉइंट P adjacent to it, then we divide the whole conductor into infinite number of very small elements or very small current elements. One of such element is AB of length dl. Biot told that value of magnetic field intensity at P due to this current element is directly proportional to current flowing in that part, directly proportional to length of the current element, directly proportional to sine theta, where theta is angle between current element and the line joining point P to the element. And it is inversely proportional to square of distance, that is 1 upon y square. When we combine all these, we get this equation. इसको आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हो y क्रॉस dl से. ये y वेक्टर है और ये dl वेक्टर है. ठीक, वी कैन राइट इट लाइक दिस: म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई y क्रॉस dl. तब साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, और अपॉन मॉड y क्यूब हो जाएगा. क्यों मॉड y क्यूब हो जाएगा? क्योंकि y स्क्वायर y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो a क्रॉस b का पूरा आएगा, और ये वैल्यू जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म में बायो-सैवर्ट्स लॉ. ठीक, दोनों अपने को याद रखना है. अब इसके बाद अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की? ठीक, क्योंकि आपने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या बताते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस देयर. इन द सेम वे यहाँ पर भी आप क्या बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस देयर. वहाँ यूनिट चार्ज होता था पॉजिटिव, यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल होगा. ठीक है, तो ये यूनिट नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो है. ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो पूरा अपन निकाले हैं dB की वैल्यू, ये दोनों इनकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर लिखा अपन ने. तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं. ठीक है, राइट हैंड पाम रूल है. बहुत सारे एम्पियर्स लॉ ऑफ स्विमिंग भी है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे दाएं हाथ.
ठीक, राइट हैंड पाम रूल. व्हाट इट सेज, इफ यू प्लेस द थंब along the direction of current flowing in the conductor and indicate these fingers towards the point P, then the direction of MFI is normal to the open palm in outwardly direction. अपवर्ड होगी. अब जैसे यहाँ पर रखोगे तो कहाँ जाएगी, अंदर, ठीक, इनसाइड. और इनसाइड जब जाती है तो उसको क्रॉस से शो करते हैं. ठीक है, बाहर जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसमें से बाहर, तो उसको डॉट से, जैसे मैं इधर निकालूंगा यदि, तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और इधर इंडिकेट कर रहे हैं तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो उसको सिर्फ एक डॉट से शो करेंगे. इफ़ यू आर इंडिकेटिंग बाय डॉट देन इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, एंड इट इज़ क्रॉस देन इट इज़ एंटरिंग इनटू द प्लेन. याद रखने का तरीका है एरो. ठीक, तीर कमान खेलोगे बचपन में, अब मत खेलना. ठीक है, यदि उसको आप किसी को हिट करते हो तो सामने वाले को तो नोक दिखती है सिर्फ, यानी उसको जब तुम्हारी तरफ आती दिखेगा, इसमें से बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, इट विल अ डॉट ऑनली. पर आपने यदि उसको मारा तो पीछे जैसे पकड़ते हो आप क्रॉस, वो आपको दिखेगा. ठीक, यानी आपने अंदर फेंका है मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस दिखेगा, यदि बाहर आ रहा है तो सिर्फ डॉट दिखेगा. ठीक, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है कि कब क्रॉस और कब डॉट. ठीक है, तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये. ठीक है, तो आइदर डॉट या क्रॉस से शो करेंगे. फिर से क्या बताया मैंने, राइट हैंड पाम रूल. इफ़ यू स्ट्रेच अवर राइट हैंड पाम इन सच ए वे that all fingers are parallel to each other and thumb is perpendicular to it but in same plane, and we indicate direction of current with the help of thumb and point the fingers towards point P, then direction of MFI is normal to the open palm in upward direction. ठीक, in outward direction. ये हो जाएगा राइट हैंड पाम रूल. तो हम दोनों को एक साथ एक के बाद एक लिखेंगे. तो पहले क्वेश्चन लिखें, राइट बायो-सेवर्ट्स लॉ. और एक छोटा सा डायग्राम पहले बना लेंगे. ठीक है, वायर किसी भी शेप का हो सकता है. ठीक, इसलिए मैंने एक अनइवन शेप लिया हुआ है. हाँ बोलो. परमिटिविटी किसकी होती है, इलेक्ट्रिक होती है. वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करती है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करती है. मीनिंग अपन बोल सकते हैं, कांस्टेंट को अपन जब शो करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या मीनिंग है उसकी. ठीक है, इन द सेम ईयर, पर ये किसको शो करता है, उस एयर की, उस वैक्यूम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है. ये पानी जब घर से निकलता होगा तो फ्रीज़र में से निकलता होगा, और यहाँ आते आते अब उबल गया होगा. हो गया. 8 मार्क्स का चैप्टर है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट करंट. लिखेंगे, बायो-सेवर्ट gave this law. Baio-Savarт gave this law to find. Baio-Savart gave this law to find magnetic field, MFI शॉर्टकट है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to a long current carrying conductor. Magnetic field intensity. Baio-Savarт gave this law to find magnetic field intensity due to a long
current carrying conductor. Due to a long current carrying conductor. Current carrying conductor. He divided this long conductor into infinite number of small parts. He divided the conductor into infinite number of small sections. Infinite number of small sections. Each section is called current element. Divided into infinite number of small sections. Each section is called current element. Each section is called current element. In the diagram, AB is such a current element. AB in the diagram, Prince आया कि नहीं? In the diagram, AB is such a small current element of length dl vector. Such a small current element of length dl vector. ठीक है? To find MFI at P, we join point P to the current element. To find MFI, MFI means magnetic field intensity. Shortcut में MFI लिखेंगे. To find MFI at P, we join P to the current element. We join P to the current element by a line. ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? y वेक्टर. उसको किससे शो किया आपने? y वेक्टर से. We join the point to the current element by a line. ब्रैकेट में लिख देंगे y वेक्टर. Then MFI depends on following factors. MFI at P depends on following factors. यही कारण है कि 3 मार्क का आता है. बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, उसके बिना नहीं लिख पाओगे आप. MFI at P depends on following factors. Depends on following factors. Number 1, it is directly proportional to current flowing in the element. It is directly proportional to the current flowing in the conductor. Implies dB mod proportional I. Equation number 1. dB mod proportional I. Equation number 1. Number 2, अब तो समझ में आ गया. Number 2, it is directly proportional to length of the current element. It is directly proportional to length of the current element. Implies dB mod proportional dl mod. Equation number 2. ठीक. Number 3, it is directly proportional to sin theta. Number 3, it is directly proportional to sin theta. Where theta is angle between current element and, लिखना जरूरी है ना. ये लिखा dB proportional to sin theta. क्या लिखा? It is directly proportional to sin theta. Implies dB proportional to sin theta. Where theta क्या है बताना जरूरी है. Where theta is angle between current element and the line
ज्वाइनिंग P to AB, ज्वाइनिंग पॉइंट P to AB। ठीक है। एंड नंबर 4, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चौथा थोड़ा डिफरेंट है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y, square of y, where y is distance between point P to the current element, where y is distance between point P to the current element। पॉइंट P to the current element implies इक्वेशन 4 लिख दोगे, dV mod proportional to 1 upon y square। ठीक है। इसके बाद लिखोगे कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4, मैंने ज्वाइनिंग लिख दिया हूँ, यू कैन राइट कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4 ये आ जाएगा। वेयर μ0 इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम and mu 0 upon 4 pi is 10 to the power minus 7 Newton per ampere square। dB mod इन वेक्टर फॉर्म यहां लिख दोगे, बता रहा हूँ। अच्छा वो पूछ लिया, एफ इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन मॉड आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। m क्या है यहाँ पर, m इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। क्या मतलब है, मैंने बताया था मैग्नेट को जब अपन सस्पेंड करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन रुकता है, नॉर्थ साउथ। जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जो साउथ में होता है उसको मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या दो मैग्नेट एक साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेंगे, नो, दे विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी उनका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, उनकी पोल की स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो पोल स्ट्रेंथ जो होती है उसको स्मॉल m से शो करते हैं। जैसे मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बोल ख़त्म कर देते हैं। इन द सेम वे पोल स्ट्रेंथ इज एक्चुअली मेजर ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा उसका स्मॉल m उतना ज़्यादा होगा, और उसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होती है। ये कहाँ से आई, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से आई, बाद में समझेंगे कभी, ठीक है। स्मॉल m की कितनी होती है, एम्पियर इंटू मीटर। तो ये भी एम्पियर इंटू मीटर और ये भी एम्पियर इंटू मीटर, और अपॉन में एक और मीटर स्क्वायर है। म्यू 0 की निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ न्यूटन है, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और म्यू 0 की न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। ठीक, अभी इसी से अपन बी की भी यूनिट निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। बहुत डिफरेंट है, पर एक बार क्लियर हो जानी चाहिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो याद रखोगे कि स्मॉल m की कितनी होती है, एम्पियर इंटू मीटर, और स्मॉल m क्या चाहिए, पोल स्ट्रेंथ है। और ये किसको शो करता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। जितना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा उसमें, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसके लिए स्मॉल m के लिए उतनी ज़्यादा होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, याद रखेंगे। गया, टूट गया ना। तो यहाँ तक लिख लिया क्वेश्चन से, वो पूरा करोगे 5 इन वेक्टर फॉर्म, ये लिखोगे।
ये 5 हो गया। वेयर ये पूरा लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना कैसे चलेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसका लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म। तो उम्मीद है कल तक याद हो जाएगा ये सब। आज अपन अब राइट हैंड पाम रूल और देख लें, ठीक है। क्या हो गया, कॉल आ रहा है, बैटरी डाउन, बंद ही कर देते हैं कॉल।